to the KG Club. Today we will start with Indian history. Indian history is divided into three parts: ancient, medieval, and modern. एंशंट और मिडेवल हिस्ट्री के बहुत फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं जो मोस्टली सब गवर्नमेंट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं. मॉडर्न हिस्ट्री के यूपीएससी फिर भी थोड़े एनालाइज करने वाले क्वेश्चंस देता है, लेकिन जो भी स्टेट पीसीएस है वो बहुत फैक्चुअल क्वेश्चंस देता है मॉडर्न हिस्ट्री के भी. तो हम जितना भी इन क्लासेस में कवर करेंगे, आप इतना कंसीडर कीजिए कि 90 to 95% क्वेश्चंस हिस्ट्री के इन्हीं में से आएंगे, इन्हीं क्लासेस में से, राइट. सो विल स्टार्ट विथ हिस्ट्री इन जनरल. व्हाट इज हिस्ट्री? द स्टडी ऑफ पास्ट इज नोन एज हिस्ट्री. हु इज फादर ऑफ हिस्ट्री? Herodotus. Herodotus is father of history. He was Greek historian. Greek, right? And he wrote one book, The Histories. The Histories. He wrote this book. इसके बाद who is father of modern history? Father of modern history. This is German historian. German. His name is Leopold von Ranke. We studied father of history and father of modern history. Herodotus, German philosopher Leopold von Ranke. Now, Hegel said, history repeats itself. History repeats itself. To this, Karl Marx added, history repeats itself first as tragedy, second as farce. First as tragedy, second as farce. Farce का मतलब is joke. This was question of essay this year in UPSC 2021 mains में. This was the topic of essay. Though you won't be asked directly out of this, but you should know. These are the basic things which you should know. Then E.H. Carr said, history is an unending dialogue between past and present. So we have studied 5 things till now. Father of history, Herodotus. Second, father of modern history, Leopold von Ranke. This was Greek, this was German. Right. Then we studied what Hegel said. History repeats itself. Next, what we studied? What Karl Marx said. He further expanded Hegel's statement. And the last, what E.H. Carr said.
we'll keep on revising after every few minutes so that you don't forget what we have studied. एंशियंट हिस्ट्री एंड मेडिवल हिस्ट्री में आपको सिर्फ और सिर्फ रट्टाफाई करना है. यू कांट अंडरस्टैंड थिंग्स. This person has done this person has done that. You have just to rectify that, right? So when you'll keep on revising again and again, तब आपको चीज़ें दिमाग में ज़्यादा बैठ जाएंगी. इस कारण we'll keep on revising in our lectures. Now the system of dating. Dates आपने BC AD पढ़ा होगा dates के साथ. What is BC? It's before Christ. Jesus Christ थे, so it is before Christ. Jesus Christ was born here. We have this as timeline. On the timeline, this was the time when Jesus Christ was born. This is the timeline before Christ, and this is the timeline AD. What is AD? Anno Domini. Anno Domini. तो जो भी हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं जीसस के पैदा होने से पहले का, हम उसे कहते हैं बिफोर क्राइस्ट. और जो भी हम पढ़ते हैं जीसस के पैदा होने के बाद का, वी कॉल इट एनो डोमिनी, राइट? और इसमें यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड. यहाँ पर जीसस वॉज बॉर्न, दिस इज 0, राइट? अब जब हम बैकवर्ड जा रहे हैं, बिफोर क्राइस्ट जा रहे हैं, तो इट इज लाइक 1 2 3 4. So 4 BC is less than 1 BC, which means 4 BC पहले हुआ होगा और 1 BC बाद में हुआ होगा. और ऐसे ही हम जब यहाँ पर जा रहे हैं 1 2 3, दिस इज AD, तो 1 AD इज लेस देन 3 AD. 1 AD पहले आया होगा 3 AD से. आप ये बात समझे, ये उल्टा चलता है. आप नंबर लाइन पढ़ते हैं तो वी गो ऐसे नेगेटिव में, -1 -2 -3, और यहाँ पे पॉजिटिव में. ऐसा ही BC और AD का कॉन्सेप्ट रहता है, ठीक है? इसके बाद व्हेन यू आर नॉट श्योर अबाउट डेट, अब हिस्ट्री में आप एकदम ऐसे इतना पुराना कोई भी हिस्टोरियन नहीं बता सकता है कि एग्जैक्ट किस ईयर में दिस थिंग वाज डन. तो इस कारण वो एक अप्रॉक्स वैल्यू बता देते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 540 AD. उस अप्रॉक्स को क्या कहते हैं? सिरका. सिरका, दिस इज अप्रॉक्स. और इसको डिनोट कैसे करते हैं? CA. तो जब भी ऐसे लिखा हो कि 1000 से 500 BC CA, so this is मतलब the approx value. उसके बाद we'll study the important eras. Important eras. First important era is Kali. Kali era, it began 20 years after end of Mahabharat. 20 years after end of Mahabharat. 20 साल जब हो चुके थे महाभारत को, उसके बाद दिस काली ईरा स्टार्टेड. नेक्स्ट, सप्तर्षि और लौकिका. सप्तर्षि और लौकिका, ये ईरा कब हुआ था? आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 25 years of Kali era. After the expiry of 25 years of
काली ईरा, वी स्टडीड टू ईरा, काली और दूसरा सप्तर्षि, जिसको लौकिका ईरा भी कहा जाता है। काली ईरा महाभारत के 20 साल खत्म होने के बाद स्टार्ट हुआ था और काली ईरा स्टार्ट होने के 25 साल बाद सप्तर्षि और लौकिका ईरा स्टार्ट हो गया। इसके बाद आता है विक्रमा ईरा। दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन लीव दिस ईरा। देन केम साका ईरा. Aspirants, there are a lot of eras. We'll only study the ones which are important, right? Saka era is important. It started in 78 AD. You have to remember this. Who commenced this era? Kushan ruler Kanishk. Kanishk or Kanishka, whatever you may call him. कुषाण डायनेस्टी के जो रूलर थे कनिष्क, when he ascended to the throne, जब उनका राज्य अभिषेक हुआ, that time साका ईरा commenced. और इसको साउथ इंडिया में, this is not very important but I'll tell you, साउथ इंडिया में इसको साली वाहना सकाब्दा ईरा भी कहा जाता है. See, I learn ancient history by breaking words into something funny. I have learnt it by the way. साली वाहन पर बैठी, साली वाहना. साका ऑलरेडी ये ईरा था तो पीछे BDA लगा दिया. बहुत बुरा तरीका हो सकता है ये, आपको क्या पता कुछ और अच्छा फनी तरीका पता हो इसे याद करने का, बट एंशिएंट हिस्ट्री को हमेशा से ब्रेक करके याद कीजिए, कुछ फनी उसके साथ जोड़ लीजिए ताकि आप भूले ना, क्योंकि किसी को भी ये चीज़ इंटरेस्टिंग तो नहीं लगेगी. साका ईरा साउथ इंडिया में क्या बोलते हैं, किसने स्टार्ट किया, बट यू हैव टू लर्न दिस. तो क्रैम कीजिए इसे. साली वाहना स्काब्दा साउथ इंडिया में कहा जाता है, और जो हमारा ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एडॉप्ट किया है वो साका ईरा ही है. और ये एडॉप्ट कब किया गया था ये छोड़िए, पहले सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साका ईरा को एडॉप्ट किया, और ग्रेगोरियन कैलेंडर इज फॉलोड इन इंडिया. ग्रेगोरियन, यू मे कॉल इट जूलियन, बिकॉज जूलियस सीजर के टाइम पे आया था ये जूलियन. और क्रिश्चियन कैलेंडर, दिस 1 जनवरी से 31 दिसंबर वाला क्रिश्चियन कैलेंडर, इसको हम इंडिया में फॉलो करते हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ओरिजिनली एडॉप्टेड दिस साका ईरा ग्रेगोरियन कैलेंडर ऑन 22 मार्च 1957. 22 मार्च 1957 में वी हैव एडॉप्टेड दिस, राइट. सो अभी हमने कौन कौन से ईरा पढ़े? हमने पढ़ा काली. काली के बाद हम लोगों ने पढ़ा सप्तर्षि, और इसे लौकिका, लौकी इस घिया ना, लौकिका, सप्तर्षि लौकिका. इसके बाद हमने पढ़ा साका, बीच में एक विक्रमा पढ़ा था, दैट वाजंट इम्पॉर्टेंट. इसके बाद अगला हम पढ़ेंगे कोलम. कॉलम कहाँ फॉलो होते हैं? केरला में, ठीक है. और इसके बाद एक इलाही. इलाही 1556 AD में आया था, इसको रिकॉग्नाइज किया गया था 1556 AD में. मुगल एम्परर अकबर, अकबर जब थ्रोन पर बैठे थे तब इसको ये इलाही ईरा को इंट्रोड्यूस किया गया था, बट औरंगजेब ने इसे एबॉलिश कर दिया था, राइट. काली, सप्तर्षि, साका, कोलम. कोलम केरला में, के से याद रखिएगा, कोलम केरला.
इलाही 1556 एडी में आया था। अकबर ने इसे इंट्रोड्यूस किया था और औरंगजेब ने इसे एबॉलिश कर दिया था। ठीक है, और इसके बाद आ गया राजसाका। राजसाका जब मराठा छत्रपति शिवाजी थ्रोन पर बैठे थे तब राजसाका आया था। छत्रपति शिवाजी थ्रोन पर बैठे थे तब आया था ये वाला, राइट। विल रिवाइज, बहुत कुछ रिवाइज करना है अभी हमें। एक तो हिस्ट्री का फादर, साथ साथ देखिए आप बोलते जाइए मन मन में। फिर मॉडर्न हिस्ट्री का फादर, उसके बाद हीगल ने क्या कहा था, उसके बाद कार्ल मार्क्स ने उस स्टेटमेंट को कैसे एक्सपैंड किया था, उसके बाद E.H. कार्ड ने क्या कहा था, राइट। ये 5 चीज़ें पढ़ी थी हमने सबसे पहले। जहाँ पर नहीं याद आ रहा पॉज कीजिए, पीछे जाइए, चेक कीजिए, फिर आगे बढ़िए। मैं बार बार यही बात बोलूँगी कि इसमें याद देखो हर कोई करने की कोशिश करता है, पर याद उसी को रहता है जो रिवीजन्स करता है, मल्टीपल रिवीजन्स करता है। आप एक चीज़ को 10 बार 20 बार बोलोगे वो दिमाग में बैठ जाएगी, वो नहीं निकलेगी फिर बाहर। रिवीजन हाँ उसके बाद भी यू हैव टू रिवाइज इट, लेकिन उसके बाद महीने बाद 2 महीने बाद भी रिवाइज करोगे आपको सब याद आ जाएगा, राइट। तो जहाँ पर लग रहा है भूल गए, पीछे जाइए और देखिए। इन 5 के बाद हमने क्या पढ़ा था, टाइमलाइन। टाइमलाइन में BC, AD, अप्रॉक्स। इसके बाद हमने ईरा पढ़े थे। ईरा में मेरे साथ साथ बोलिए, फर्स्ट ईरा कौन सा था, काली। कब स्टार्ट होता है, महाभारत के 20 साल बाद। अगला ईरा हमने कौन सा पढ़ा था, सप्तर्षि। इसको क्या बोलते हैं, और घिया वाला, लौकी का। ये कब स्टार्ट हुआ था, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 25 years ऑफ काली ईरा। उसके बाद हमने थर्ड क्या पढ़ा था, साका। यही पढ़ा था ना, किसने इंट्रोड्यूस किया था, कनिष्क डायनेस्टी के रूलर ने, कुशाना डायनेस्टी के रूलर कनिष्क ने। कुशाना डायनेस्टी का रूलर था ये। इसके बाद हमने क्या पढ़ा है, इसी में साउथ इंडिया में से क्या बोलते हैं, साली वाहना, स्काब्दा। ठीक है, वैसे स्टार्ट कब हुआ था, डेट 78 AD। ठीक है, और इंडिया ने साका ईरा को ऑफिशियली फॉलो कर रखा है। और कैलेंडर कौन सा फॉलो करता है इंडिया, ग्रेगोरियन। और क्या बोलते हैं इसे, जूलियन। और क्या बोलते हैं इसे, क्रिश्चियन। फॉलो करने की डेट क्या है, 22 मार्च 1957। ठीक है, इसके बाद बताओ केरला वाला, कोलम ईरा, केरला में होता है ये। इसके बाद बताओ जो अकबर ने लगाया था, औरंगजेब ने हटाया था, इलाही, जिले लाही कहते हैं ना, इलाही, याद रखिएगा। कब, 1556 AD में। साका का टाइम था 78 AD, इसका है 1556 AD। इसके बाद छत्रपति शिवाजी वाला बताइए कौन सा था, राज साका। हो गए याद। देखिए कोई भी जनरल नॉलेज की बुक खरीदकर उसे आराम से पढ़ सकता है, याद कर सकता है। इन वीडियोस का मेन मोटिव ही ये है कि आप लोगों के दिमाग में चीज़ों को बिठाना।
तो जब मैं रिवीजन करवा रही हूँ उसे स्किप मत करिएगा कि ये तो क्या करवा रही है, टाइम पास हो रहा है, नहीं, वो चीज़ों से आपको याद हो जाएगा। और जब मैं बोल रही हूँ मेरे साथ साथ बोलिए, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का डिवीज़न। हिस्ट्री को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है जिसे बाइपार्टाइट डिवीज़न कहते हैं। एक है प्री हिस्टोरिक, एक है हिस्टोरिक। कुछ लोग इसे प्री और प्रोटो में भी कर देते हैं, बट हम सिर्फ प्री हिस्टोरिक और हिस्टोरिक को फॉलो करेंगे। पर मैं बता देती हूँ इनका मतलब होता क्या है। प्री हिस्टोरिक वो हिस्ट्री है जिसका कोई रिटन एविडेंस नहीं है, ठीक है। देयर इज नो रिटन एविडेंस, नो रिटन एविडेंस। और हिस्टोरिक वो है जिसका रिटन एविडेंस अवेलेबल है। देखिए, चीज़ों को प्रिजर्व, जिन लिटरेचर को प्रिजर्व कर लिया गया, आप उन्हीं के बारे में पढ़ सकते हैं, या फिर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस से जिनके बारे में पता लगता है आपको उन्हीं का पता है। बट देयर एग्जिस्ट अ वेरी बिग हिस्ट्री। वो हिस्ट्री के बारे में हमें कुछ नहीं पता है, हम उसे डिनाई नहीं कर सकते। देयर वॉज हिस्ट्री, लेकिन देयर इज हिस्ट्री, लेकिन हम उसे हम उसे पढ़ नहीं सकते बिकॉज देयर इज नो रिटन एविडेंस, राइट। और कुछ लोग इसे प्री और प्रोटो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। प्री और प्रोटो का क्या है, इसका कोई रिटन एविडेंस नहीं है, इसका रिटन एविडेंस है, बट वी हैव नॉट बीन एबल टू डिक्रिप्ट दैट। अभी तक हम उसे डेसिफर नहीं कर पाए हैं, राइट। तो जैसे आप बोल सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के मैन्यूस्क्रिप्ट, सील्स और उन सब चीज़ों को हम अभी तक डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडेवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। इसकी क्रोनोलॉजी ये सिंस बिगिनिंग टू 647 AD, ठीक है, 647 AD। इसके बाद ये 647 से 1757 में क्या हुआ था, प्लासी, ठीक है। और ये 1757 से 1947। उसके बाद हम पोस्ट मॉडर्न में पढ़ते हैं 1947 से टिल डेट। कुछ बुक्स ने ये गलत दे रखा है, मॉडर्न में डाल रखा है, पर ये मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न में होता है इसका डिवीजन। 647 AD में क्या हुआ था, हर्षवर्धना की डेथ हुई थी। विद दैट एंशिएंट हिस्ट्री एंडेड, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, क्रोनोलॉजी एंशिएंट का, मिडेवल का, मॉडर्न का। एंशिएंट बिगिनिंग से लेके कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका हमारे पास रिटन एविडेंस है कि नहीं है, हम उसको भी एंशिएंट में ही मानते हैं। बिगनिंग से 647 AD। 647 AD में क्या हुआ था, हर्षवर्धना की डेथ हुई थी, हर्षवर्धना। इसके बाद 647 से 1757 तक मिडेवल, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, और मॉडर्न हुआ था 1757 से 1947 तक, ठीक है। फिर से एक बार बोल लेते हैं, एंशिएंट, मिडेवल, मॉडर्न। एंशिएंट कहाँ से, सिंस बिगनिंग टू 647 AD। कौन मरा था इसमें, हर्षवर्धना। ये 647 से 1757 क्या हुआ था, प्लासी का वॉर। ये 1757 से 1947 इंडिया
आज़ाद हुआ था। ठीक है, इसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे एंशियंट हिस्ट्री का डिवीज़न। एंशियंट हिस्ट्री को किस तरह से डिवाइड किया गया है, विल स्टडी दिस। देखिए, सबसे पहले हम मानते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। बच्चों, आप इसे याद नहीं भी करोगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जब आप आगे एंशियंट हिस्ट्री को पढ़ोगे आपको एक समझ में आना चाहिए कि हम उस ऑर्डर में क्यों जा रहे हैं, क्या हुआ था। बस बेसिक्स आपको समझ में आना चाहिए, क्लियर हो जाने चाहिए। डजेंट मैटर उसकी टाइमलाइन क्या है, हम एंशियंट हिस्ट्री की टाइमलाइन पढ़ेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको अगर ये टाइमलाइन याद ना भी हो। जस्ट एक बार सुन लीजिए, इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर इंडस, फिर वैदिक, फिर महाजनपदास, उसके बाद मौर्य, उसके बाद पोस्ट मौर्य, अभी आगे को और बताती हूँ, पहले इतना देख लो। प्री हिस्टोरिक स्टार्ट होता है 30 लाख BC से 600 BC तक में। उसके बाद इंडस और वैदिक इसी के बीच का पार्ट है, बिकॉज इंडस, अभी आप बोलोगे कि इंडस तो आपने बोला प्रोटो में आता है, बट आई टोल्ड यू कि हम सिर्फ और सिर्फ बाईपार्टाइट डिवीज़न को ही फॉलो करेंगे, दैट इज़ प्री एंड हिस्टोरिक। हम प्रोटो नहीं देखेंगे। इंडस इसी टाइम लाइन के बीच में आता है, 2500 का आधा 1750, 2500 BC से 1750 BC। ये 1500 से 600, ये 600 है ना, ये भी 600। प्री हिस्टोरिक 30 लाख से चालू होता है, 600 तक जाता है। ठीक है, और इंडस उसी के बीच में आता है, 2500 का आधा 1750 पे आके ये खत्म हो जाता है। वैदिक 1500 से स्टार्ट होता है, 600 तक जाता है, प्री हिस्टोरिक एंड। फिर महाजनपद आ जाए थे, इसके बारे में हमारे पास बहुत सारा या डाटा है, एविडेंस है, इसलिए इसे प्री हिस्टोरिक में काउंट नहीं करते। ये 600 से स्टार्ट हुआ था और 322 BC तक चला था। उसके बाद मौर्य पीरियड आया, दैट इज 322 BC से 185 BC तक, 185 BC तक, 322 BC से 185 BC तक। फिर पोस्ट मौर्य, अच्छा हाँ, पोस्ट मौर्य को प्री गुप्ता भी कहा जाता है। प्री गुप्ता, आपको पता है ना, प्री आता है, फिर वो वाला एज आता है, और फिर उसका पोस्ट आता है, ऐसे होता है, प्री देन दैट थिंग एंड देन पोस्ट। तो पोस्ट मौर्य, जिसको प्री गुप्ता कहा जाता है, दैट स्टार्टेड फ्रॉम 185 BC टू 319 AD। ठीक है, हमने क्या पढ़ा है, प्री हिस्टोरिक, देन इंडस वैली सिविलाइजेशन, देन वैदिक कल्चर, देन महाजनपदा पीरियड, देन मौर्य पीरियड, देन पोस्ट मौर्य, जिसको हम प्री गुप्ता भी कहते हैं। प्री गुप्ता के बाद गुप्ता आएगा ऑब्वियसली, गुप्ता के बाद पोस्ट गुप्ता आएगा, और पोस्ट गुप्ता को वर्धना भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ इट्स फाउंडर हर्षवर्धना। तो हमने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। पोस्ट का मैंने आपको बता दिया, 185 टू 319। गुप्ता पीरियड 319 से 550 AD तक। यहाँ पे बेटा ये BC था, ये AD स्टार्ट हो गए यहाँ से, ठीक है। और पोस्ट वर्धन चलेगा, पोस्ट गुप्ता और वर्धना वाला चलेगा 550 से लेके 647 AD तक। मैंने आपको बताया था ना एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल और मॉडर्न की क्रोनोलॉजी में, कि एंशियंट हिस्ट्री बिगनिंग से लेके 647 AD तक है, वो यहाँ तक वर्धना, ठीक है, 647 AD तक। सिर्फ नोट कर लो, याद करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है।
याद करना तो याद भी करवा सकती हूँ, ऐसी बात नहीं है। ये देखो, ये तो मैंने आपको तीनों याद करवा दिए थे, 30 लाख से 600 तक। ये इसके बीच में आ जाएगा 2500, 2500 का आधा 1750। वैदिक आ जाएगा 1500 से 600 तक। 600 का आधा 300 होता है, 322 लिख दो। 322 से 185 तक, 185 से 319 तक, 319 से 550 तक, 550 से 647 तक। वे बहुत इजी है पर मतलब नहीं है याद रखने का इसे, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मिडीवल का। आज हम थोड़ा ही करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। मिडीवल का क्रोनोलॉजी जानेंगे। पहले आता है अर्ली मिडीवल पीरियड, अर्ली मिडीवल पीरियड। फिर आता है सल्टनेट, सुल्तान था, सल्टनेट। और उसके बाद आएगा मुगल। अर्ली में आप 647 पे जब एंशियंट ख़त्म हुआ तो ये 647 से स्टार्ट होएगा, 1206 तक चला ये, 1206 से ये 1526 तक चला, और ये 1526 से 1707 तक चला, ठीक है। 1700 ये आप कह लो 1757 तक चला मुगल पीरियड। उसके बाद आता है मॉडर्न। मॉडर्न के 3 फेस रहे हैं। दिस इज़ मर्केंटाइल, याद मत रखिएगा, जस्ट मैं बता रही हूँ ताकि कवर हो जाए आपका जो जो आपको करना है। उसके बाद इंडस्ट्रियल, और उसके बाद आया था फाइनेंशियल। मर्केंटाइल में दे वर जस्ट ट्रेडर्स। वो 1757 से प्लासी के युद्ध से 1813 तक, चार्टर एक्ट 1813 का जो था तब तक चला था। फिर इंडस्ट्रियल फेज उनका 1813 से स्टार्ट होकर 1858 तक चला था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1857 की युद्ध के बाद 1858 में, तो वहाँ तक चला था। एंड देन स्टार्टेड द फाइनेंशियल फेज, ठीक है, ये आज़ादी तक चला था। अभी जब आप आगे आगे पढ़ोगे ये चीज़ आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। अभी आप सिर्फ एक एंशियंट हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी दिमाग में रखिए। नाउ विल स्टडी, आप आईएनसी के फेजेस भी कर सकते हैं, इंटरनेशनल कांग्रेस के फेजेस। पहला फेज था इसका मॉडरेट का, मॉडरेट, फिर आया एक्सट्रीमिस्ट, और फिर आया गांधी। मॉडरेट थे 1885 में तो कांग्रेस बनी थी, 1885 से लेके 1905 तक, और 1907 भी आप कह सकते हैं। 1905 से 1917 तक रहा था ये। गांधी जी वैसे तो 1915 में आए थे इंडिया में, बट देन उनका पहला 1-2 साल भारत दौरा चला था, देन ही स्टार्टेड विथ थिंग्स। 1917 में आपको पता होगा ही डिड द चंपारण मूवमेंट, तब से ही बिकेम एक्टिव, राइट। तो 1917 से इंडिपेंडेंस तक, 1885 से 1905, 1905 से 1970, 1970 से 1947, राइट। अब इसके बाद विल स्टार्ट विद एंशियंट हिस्ट्री। अरे यार रुकिए, गलत हो गया स्पेलिंग। एंशियंट हिस्ट्री, आई गेस एक लेक्चर के लिए ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, सो विल कवर एंशियंट हिस्ट्री इन नेक्स्ट लेक्चर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द केजी क्लब। थैंक यू, एंड प्लीज़ रिवीजन ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर लगाने से पहले अपने माइंड में जो जो हमने पढ़ा है लाइन वाइज एकदम बोल दीजिएगा। फादर ऑफ हिस्ट्री, फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद हीगल, कार्ल मार्क्स, E.H. कार, AC, BC, अप्रॉक्स, देन ऑल द ईरास, काली, सप्तर्षि, साका, कोलम, इलाही, राजसाका। उसके बाद डिवीज़न ऑफ हिस्ट्री, प्री, प्रोटो, हिस्टोरिक। उसके बाद क्रोनोलॉजी, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न का, फिर एंशियंट का क्रोनोलॉजी। जो भी अभी तक हमने पढ़ा है सब एक बार माइंड में बोलिएगा, सब कुछ आपको याद होना चाहिए, सब कुछ टिप्स पे होना चाहिए, क्योंकि
वही बात है, आप पढ़ तो बुक से भी देख कर सकते हैं, इतनी सारी मार्केट में बुक्स अवेलेबल है। इन वीडियोस का मतलब यही है कि चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएं, आपका क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर वहाँ पर पता हो, आपको सोचना ना पड़े अरे यार बुक में क्या पढ़ा था, बैठ जाए दिमाग में। तो प्लीज़ रिवीजन करिएगा सेकेंड लेक्चर देखने से पहले। थैंक यू, बाय बाय।